We bring you news from the national capital. A severe heat wave is gripping across North India, pushing temperatures to unprecedented levels. The scorching heat has prompted health warnings and also raised concerns about the well-being of millions of residents. Reports of the affected areas describe the soaring temperatures, with some regions recording temperature even over 50 degrees Celsius. The intense heat has now brought in worse conditions, leading to heat-related illnesses as well as discomfort amongst the people. Amidst the relentless march of time, the parched streets of Delhi, though, continue to echo the same desperate plea for water. As faucets run dry and reservoirs dwindle, the city grapples with an enduring crisis that shows no sign of relenting. The visuals on your screens show how Delhiites are suffering amid the intense heat. Where people in the national capital are fighting for basic necessity, that is water. With temperatures soaring, the water supply is dwindling, leaving many people here in the national capital fighting and struggling for water. I'm currently in this area here in the national capital. This is the railway colony, and as you can see right now, the water tanker has arrived here, and as it arrived here, people ran here to fetch water. They brought their buckets, the plastic buckets and the pipes here, and they started to fetch the water. That shows you the gravity of the situation. In fact, here. So that's the condition. Most residents waiting for just a drop of water, taking to the streets in a display of discontent. The Delhi BJP President Virendra Sachdeva led a determined march and protest against the orchestrated water crisis gripping the capital. As the national capital is reeling under severe heat wave and water scarcity, the blame game has continued. BJP is now on the street demonstrating a protest against the Delhi government. The Aam Aadmi Party led Delhi government, accusing them of misgovernance and mismanagement, due to which this water scarcity has happened. The BJP is now trying to march toward the Delhi Secretariat. जिस प्रकार से पानी के लिए त्राही पूरे दिल्ली में हो रही है, गंदा पानी, समय कम, पानी की जो बर्बादी हुई है, जो फ्री दे के लोगों को एकदम इन्होंने इस तरह का उसको कर दिया है लोगों को फ्री का, तो उसका खामियाजा सभी व्यक्तियों को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा ने दिल्ली को पानी नहीं दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। ये सरासर झूठ है। वो हर बार यही बहाना मारते हैं। हरियाणा अपना पूरा पानी दे रहा है और हमेशा ये लास्ट मोमेंट में नए बहाने क्यों मारते हैं? अगर इनकी सरकार में है तो इनकी प्लानिंग जो पहले बोलते हैं हमने प्लानिंग की हुई है गर्मियों के लिए, वो अब गर्मियों में कहाँ चली जाती है? इनके सीएम जो है वो जेल से बाहर आते हैं चुनाव की प्रचार के लिए, अब पंजाब में बैठ के वो ऐश कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में घूम रहे हैं, और दिल्ली के लोग यहाँ टैंकरों में पाइप जोड़ रहे हैं। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है। दिल्ली पे 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में कहा था कि 2024 तक में दिल्ली के हर नल से टूट से पानी लागू होता है। जो पानी दिल्ली को फ्री मिलना चाहिए था, फ्री तो छोड़िए, ये पानी बेच के पैसा कमा रहे हैं। My colleague Akanksha is joining us live from hospital. Akanksha, the severe heat that we are witnessing across the national capital, adding to it the acute water crisis as well, has made life very, very difficult for Delhiites. Well, I'm coming to you live from RML Hospital here in the national capital, where arrangements have been made to ensure that the heat stroke patients who come here are saved. I'm currently standing outside the heat stroke room, and firstly, let me take you inside to show you what arrangements have been made by the RML Hospital. On my right-hand side, you can see this is the immersion tub for the heat stroke patients. You can see this will be filled with 30% of ice, rest will be water, and the patient will be immersed in this. And on my left-hand side, you can see that these are the ICU beds that have been kept here, and there's also one inflatable tub that has been kept, and as soon as the patient will arrive, he or she will be immersed in water here so as
just to maintain their temperature. Let me go across to Dr. Seema Wasnik. Ma'am, आप पहले एक्सप्लेन करिए कि ये इमर्जन टब क्या है और जब पेशेंट आते हैं तो किस तरह उनको यहाँ पे सेव किया था। ये इमर्शन टब जो ये सेरेमिक का बना हुआ है, पर हर एक के घरों में भी ऐसे टब्स होते हैं, तो इसमें पानी इकट्ठा 300 लीटर तक के कर सकते हैं। बड़े फास्ट स्पीड से 2 मिनट के अंदर अभी आपने देखा होगा कि टब फिल हो जाता है। और साथ में ये आइस बॉय मशीन है, हिम प्रशीतक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसमें बर्फ बनता है, 50 किलो एट ए टाइम बर्फ होता है इसमें, और पूरे एक दिन में इसमें 250 किलो बर्फ बनता है। अच्छा, तो ये बर्फ ऐड करते हैं इसमें, और ये इसका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री होना चाहिए, इसलिए बर्फ ऐड करते हैं। और उसके बाद पेशेंट को यहाँ पे कोल्ड इमर्शन टेक्निक बोलते हैं उसको, इसमें पेशेंट को बैठने के लिए बोलते हैं। उसका मुंह पानी के बाहर होना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा हल्का सा बेहोश अगर पेशेंट है तो ड्राउन भी हो सकता है उसमें। सो उसके अराउंड, शोल्डर्स के अराउंड चादर से लपेट के उसको 2 लोग पकड़ेंगे पीछे से। तो मैम बताया जा रहा है कि परसों यहाँ पे एक 40-year-old माइग्रेंट हैं जिनकी डेथ हो गई। किस सिचुएशन में वो आए थे और क्या उनको इस रूम में लेके आए गए? हाँ जी, बिल्कुल लेकर आए थे यहाँ पे। फिर क्या हुआ था उनको? जब वो यहाँ पे आए थे तो वो टिपिकली यानी उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, पर उनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, और उनका ईसीजी एबनॉर्मल था, उनका ट्रोपोनिन टेस्ट पॉजिटिव था, जो कि हार्ट की प्रॉब्लम बताता है, और ईसीजी में उनके वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस थे। तो और उनका सेकंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस सेप्टिक शॉक था। तो ऐसे मिक्स पिक्चर के साथ पेशेंट आते, तुम टिपिकली ये नहीं बोल सकते हो कि ये पेशेंट हीट स्ट्रोक की वजह से इतना क्रिटिकल हो गया है। उसका बैकग्राउंड में कोई इलनेस होता है तो वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं हीट वेव की वजह से। मैम हम इस तरफ चलते हैं, यहाँ आईसीयू बेड्स हैं और यहाँ इन्फ्लेटेबल टब भी है, इसको भी पानी और आइस से भर दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इसका यही सबसे बेस्ट इलाज यही है कि कोई भी पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, 102 के ऊपर 105 106 जा रहा है, इमीडिएटली इसको आइस वाटर में टब में डाल के उसको आधे पौने घंटे तक के रखो, और उसके बाद दोबारा उसका टेम्परेचर लो। अगर 102 तक टेम्परेचर आ गया तो उसको बाहर निकाल दो। और यहाँ आईसीयू बेड्स भी हम देख पा रहे हैं, 2 यहाँ है और 2 यहाँ एसी भी है, और काफी ठंडा ये रूम किया गया है हीट स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए। हाँ जी, तो ताकि उसका हर तरीके से उसका टेम्परेचर कम हो, ओट कोल्ड इमर्शन से भी और अदरवाइज भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम करने से भी उसका टेम्परेचर कम होगा। तो सारे टेक्निक से, उसके अलावा हम ये जो आइस पानी की ये आईवी फ्लूइड्स की बॉटल्स है वो भी बर्फ में डाल के रखते हैं ठंडी करने के लिए, ताकि हम पेशेंट को कोल्ड आईवी फ्लूइड्स देते हैं, कोल्ड इरिगेशन करते हैं, ब्लैडर इरिगेशन एंड राइल्स ट्यूब से भी। अगर ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है जो कि टब में नहीं जा सकते या कुछ प्रॉब्लम है, रिससिनेट हो रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली कोल्ड फ्लूइड्स इन्फ्यूज करके जैसे पेशेंट की कंडीशन स्टेबल होती उस तरीके से पेशेंट टू पेशेंट हमें मैनेज करना होता है। मैम बताया जा रहा है कि यहाँ एम्बुलेंसेज भी हैं, उसमें भी इसी तरीके का सेम अरेंजमेंट है, सेम इन्फ्लेटेबल टब है, बिकॉज इसका कुछ ज्यादा वेट नहीं है, और ये कहीं पे भी तुम इसको इन्फ्लेट कर सकते हैं, उसमें पानी और बर्फ मिला के पेशेंट को जहाँ पे भी वो कोलैप्स हुआ है हीट स्ट्रोक की वजह से, वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू डायल द एम्बुलेंस नंबर, और इवन इफ यू डायल 100 नंबर दे विल डायरेक्ट इट टू द एम्बुलेंस। तो मैम कितने केसेस इतने पिछले कुछ दिनों में आए हैं आरएमएल? 8 पेशेंट्स क्रिटिकल थे। Okay, there are 8 critical patients who have come in there. Such is the situation. Akanksha will continue coming back to you for that. But let's also show our viewers what the ground situation is. Our colleague Prerit was at Vivekanand Colony, where the situation is so dire that there is a water tank that comes in. The residents there, about 2,000 of them, depending on just water tankers. Take a look at what we're talking about. देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। जहां एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं उससे ज्यादा लोग पानी की कमी से परेशान है। पानी को लेकर के देश की राजधानी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है, लेकिन पानी की इतनी ज्यादा लोगों के बीच में कमी है और पानी की आपूर्ति उनके लिए इतनी कम पड़ रही है कि लोगों में पानी को लेकर के एक बड़ी समस्या बन गई है। और यूं कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में एक इस वक्त की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल समस्या है। और इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में मौजूद हूं, विवेकानंद कॉलोनी में मौजूद हूं, और यहाँ देखिए किस तरीके से लोग जो है ये बाल्टी लेकर के दूर दूर के इलाके से इस कॉलोनी में यहाँ लोग आ रहे हैं और यहाँ पानी भर रहे हैं। और पानी को लेकर के लोगों में एक बड़ी गंभीर समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोगों में परेशानी है, दिक्कतें हैं। यहाँ के स्थानीय लोग से भी हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये बताइए किस तरह की पानी की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? कहाँ पानी की कमी आपको महसूस हो रही है? सर, इधर में 2 टैंकर हैं सुबह शाम,
उसके बाद कोई पानी नहीं है, ये सीवर चल रहा है एक बस। उसके बाद में अब 9:30-10 बजे तक आएगा, उसके बाद पानी नहीं है, फिर आएगा 3-3:30 बजे, 4 भी बज जाए 5 भी बज जाए, और कोई पानी की समस्या है ही नहीं। तो एक टैंकर पानी आ रहा है, और एक टैंकर पानी को लेने के लिए कितने लोग हैं, कितनी आबादी है इस इलाके में? आदमी हैं 2,500-3 हजार। तो क्या 2,500-3 हजार लोगों को एक टैंकर पानी से उनकी पानी की पूर्ति हो रही है, जो आवश्यकता है उनकी? नहीं जी, मरमार होती है यहाँ तो रोजाना डेली। तो स्थानीय विधायक जो लोग हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई उन्हें? हाँ, सबको पता है, सब यहीं रहते हैं, एक उधर रहता है, एक उधर रहता है, एक अपनी ड्यूटी कर रहा है, सबसे कह दिए। समस्या का हल नहीं हो पा रहा है? नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से लोग जो है यहाँ पे पानी भरने आ रहे हैं, उन्हें बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो इस वक्त की स्थिति है दिल्ली के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पानी को लेकर के भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। कि देखिए यहाँ पे खाली यहाँ पे लोगों के बाल्टी हैं, डब्बे हैं, और वो पानी यहाँ से लेने के लिए आ रहे हैं। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.